Yeah. So let's start with part 2 of this chapter, जहाँ पर हम किरचॉफ्स करंट लॉ के फर्स्ट एमसीक्यू है वही है. क्या दिया है यहाँ पे? Point out the right statement about the validity of Kirchhoff's junction rule. It is based on the conservation of charge. Outgoing current add up and are equal to the incoming current at the junction. Okay. Bending or reorienting the wire does not change the validity of Kirchhoff's junction rule. And all of these. Basically, everything is true here and therefore D is the answer. Is that clear? Let's proceed for the next question now. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75. दिस इज अ स्टार क्वेश्चन, स्टार प्रॉब्लम. क्या दिया है यहाँ पे देखिए. इट सेज कि क्वेश्चन नंबर 75 क्या दिया है यहाँ पे. द सर्किट हैज a section ABC as shown in the figure. If the potentials at A, B and C are V1, V2 and V3 respectively. यहाँ का potential है V1, this is potential V2 and this is V3 respectively. The potential at point O is, how's that? कैसे करेंगे इसको? तो let us apply here. यहाँ पे currents के बारे में कुछ दिया है क्या? They have not given anything about the currents, isn't it? So let me consider something here. I'll consider the current in the first part. यहाँ का जो current है, I'll consider that current to be like this. Let's say this is I1. It's going away. Let's say. ठीक है. और बाकी के दो करंट्स भी मैं इसको अवे ही कंसिडर करूंगा. आई कंसिडर द अदर टू करंट. इट इज अप टू अस कि वो कैसे कंसिडर करना है. और यहाँ का भी करंट आई कंसिडर इट लाइक दिस. सो आई से दिस इज I2 and this is I3. I1, I2 and I3. So by using Kirchhoff's current law, by Kirchhoff's current law, it is minus I1 minus I2 minus I3 is equal to 0, or in other words I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. I'll call this as equation number 1. Is this okay? Fine. Now let us say let V0 is equal to potential at O. Potential at O कितना है वो? V0 है. ठीक है. एंड तो अगर मैं ओहम्स लॉ अप्लाई करूं, बाय ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ, देखिए यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि करंट सब कैसे मैंने एज्यूम किया. आई कैन एज्यूम एनीथिंग. अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है तो मेरा अजम्पशन सही है, उसका वैल्यू नेगेटिव आता है तो मेरा अजम्पशन अपोजिट डायरेक्शन में है. गलत नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है. तो मैंने ऐसे एज्यूम किया है I1, I2, I3. इज दैट अंडरस्टूड? मेरा काम है आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल एट O. ठीक है. नाउ एज वी नो द करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो यहाँ का पोटेंशियल अगर V0 है तो V0 इज ग्रेटर देन V1, isn't it? Are you understanding that? Isn't it? So by Ohm's law, if I'll apply Ohm's law over there, what am I going to get there? क्या मिलेगा मुझे आप बता सकते हो please? What am I going to get there by Ohm's law? It will be V0 minus V1 is equal to the potential drop. V is equal to delta V बोल सकते हैं इसको, is equal to I1 R1. Yes or no? Is this clear to you all? उसी तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूँ V0 minus V2 is equal to I2 R2 and V0 minus V3 is equal to I3 R3. I3 R3 बराबर है क्या? This is I3 R3. Any doubts about that? समझ में आया सबको? Isn't it? तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? Therefore, what is I1 is equal to V0 minus V1 upon R1, and what is I2 is equal to V0 minus V2 upon R2, and what is I3 is equal to V0 minus V3 upon R3. Now when I add them up, it is equal to 0.
अगर मैं इनको ऐड कर लेता हूँ तो व्हाट विल से, देयरफॉर I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. That is V0 minus V1 upon R1 plus V0 minus V2 upon R2 plus V0 minus V3 upon R3 is equal to 0. Well, what does this give me? This will give me further. अब ये जो माइनस वाली चीज है उसको हम RHS में ट्रांसफर कर देते हैं. इज दैट क्लियर? और यहाँ से V0 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. 1/R3 is equal to, it will be V1/R1 plus V2/R2 प्लस V3/R3. सही है. अब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड करेगा, डिवाइड करते करते न्यूमरेटर में जाएगा तो रेस टू -1 हो जाएगा. यस और नो? व्हाट इज द आंसर देयर? A is the B is the answer there. You see what is V0 is equal to? बताइए. What will be V0 is equal to? Yes, if I substitute here, what am I going to get there? So that will give me, therefore V0 is equal to, it will be V1/R1 plus V2/R2 plus V3/R3 into 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 bracket raised to -1. And what is that option? That option is B. Is this clear to all? This is option B. Any doubts about that? Is it a star problem? It is. Any doubts about that? चलिए आगे बढ़ते हैं. Question number 76. Question number 76. आप बताएंगे मुझे बाद में ये स्टार है या नहीं है. अच्छा, यहाँ पे कुछ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B. This is A, this is B. Let me call this as C and this is D. So what is the potential difference between A and B? क्या होगा potential difference? Can you tell me? Yes. Now what I say here is what is the resistance of this upper arm, because they are in series, na? These two resistances, they are in series. So 3 plus 2 5, na? The circuit is going to be like this. This is going to be 5 ohm और यहाँ पर भी 5 ohm ही है. Yes or no? This is also 5 ohm. समझे क्या? Isn't it? अच्छा, ये 5 ohm और 5 ohm का क्या हो जाएगा फिर बताइए. दिस टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? सो यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब है दिस करंट इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड इक्वली. करंट इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड इक्वली. मतलब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट विच विल फ्लो थ्रू दिस. यहाँ से फ्लो होने वाला करंट होगा 1 एम्पियर और यहाँ से फ्लो होने वाला करंट भी होगा 1 एम्पियर बिकॉज ऑफ द इक्वल रेजिस्टेंस. सो द करंट फ्लोइंग हियर is actually 1 ampere and the current flowing over here is also 1 ampere. Any doubts about that? Is this clear to you all? ठीक है. All right. Now potential difference across C and A ये हम पता करते हैं. What is the potential difference across CA? ये पोटेंशियल डिफरेंस मैं कैसे डिनोट करूंगा? देखिए, करंट इज फ्लोइंग हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो कैन आई से दिस इज VC
minus VA. Delta V is equal to IR, is equal to I is 1 and resistance is 2. So is that 2 volt? यहाँ का और यहाँ का potential difference is 2 volt. Any doubts about that? Similarly, what is the potential difference? What is the potential difference across CB, which I am going to denote as VC minus VB is equal to, it will be 1 into 3, that is equal to 3 volt. Any doubts about that? समझ में आया? अब ये इक्वेशन से इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा दोनों इक्वेशंस. So what you will get after subtracting these equations? Subtract. So subtraction मतलब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा. अब ये VC और VC कैंसिल हो जाएगा. Are you understanding what I am saying there? So is this going to be minus VA plus VB? That is equal to minus 1 volt. Yes or no? बराबर है? अच्छा. Now I'll multiply throughout by minus 1. तो क्या मिल जाएगा? It will be VA minus VB is equal to 1 volt. So is this the potential difference? Potential difference between which points? Points A and B is equal to 1 volt. Is equal to 1 volt, and that's the answer. I think it is half star. कि नहीं? इसके जैसे प्रॉब्लम्स आपने किए नहीं पहले कभी? ये किए हैं? नाइन्थ में, 10th में, 11th में और 12th में भी नहीं किए. बराबर है क्या? समझ में आ रहा है सबको ये? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट? हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 77. इसी टाइप का क्वेश्चन है ये. लेट्स सी क्या दिया है यहाँ पे. In the given circuit, the potential at point B is 0. It's given that potential at B is equal to 0. The potential at A and D will be. So I have to find out what is VA and what is VD. This is my question. Is the question clear? Question clear है? कैसे करेंगे बताइए. Now I would say potential at A जो है, let me call this as VA. ठीक है. अब यहां से फ्लो होने वाला करंट 2 एम्पियर है, तो वो 2 एम्पियर फिक्स ही रहेगा ना, ये चेंज नहीं होता है करंट. बराबर है क्या? करंट विल बी सेम. सो अगर मैं यहां पर अप्लाई करूंगा व्हाट इज VA माइनस VB, VA माइनस VB की अगर मैं बात कर दूं तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल. करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये अपने को पता है. इज इक्वल टू IR ना. is equal to IR मतलब what is the current flowing 2 and what is the resistance over there in between them 2. So 2 to the 4 volt. So this is VA minus VB. समझ में आ गई बात? But I know that VB is equal to 0. So therefore what is VA is equal to? Can you tell me what is VA is equal to? बताइए please. 4 volt. VA is equal to 4 volt. Any doubts about that? Similarly पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट सी, वो भी इसी तरह जा रहा है ऐसे. पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट सी, क्या हो जाएगा ये? फर्दर आई वांट VD, तो मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी. नाउ वेयर इज दिस D कनेक्टेड? D is connected to the positive terminal of the battery directly, है ना. Therefore यहाँ से मैं directly बोल सकता हूँ VD is equal to 3 volt. क्यों? Because it is directly connected to the positive terminal of the battery. Is that okay? So that's the answer. VD is 3 volt, VA is 4 volt. What is the answer here? D is the answer. Is this clear? समझ में आ गया? It was easy. Yeah, it was easy and it is non-conventional. It is not like the conventional problems that we solve. वैसा नहीं है. समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं.
क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ जाते हैं अब। गो फॉर क्वेश्चन नंबर 78। दिस इज क्वेश्चन नंबर 78। क्या दिया है यहाँ पे? अ करंट ऑफ 6 एम्पियर एंटर्स वन कॉर्नर पी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ से 6 एम्पियर का करंट आ रहा है। गौर से देखिए, व्हाट आर दीज करंट्स? दिस इज I1 एक्चुअली। कैन यू रीड दिस? ये I1 है और ये I2 है। ठीक है। Triangle PQR having 3 wires of resistance 2 ohm each and leaves by the corner R। यहाँ से वो जा रहा है करंट। Then the currents I1 and I2 are। currents I1 and I2 are। क्या कैसे करेंगे यहाँ पे बताइए मुझे? How are we going to solve this? I think we will apply Kirchhoff's junction law at P by Kirchhoff's current law at P। Incoming current 6 ampere, outgoing current I1 plus I2। So I1 plus I2 is equal to 6। Is this okay? और मुझे I1 और I2 ही चाहिए। 2 equations। I need 2 equations for these 2 unknowns। तो एक इक्वेशन मुझे मिल गया है। अब दूसरे इक्वेशन के लिए आई विल एज्यूम सम, यहाँ पे मैं कोई ये वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा। सो आई विल कंसीडर दिस लूप बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर द लूप, विच लूप? फॉर द लूप PQRP। PQRP। ठीक है। हम करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी देखिए, ये करंट ऐसे आएगा और यहाँ से जाते समय वो करंट उस तरह से जाएगा। देखिए, जस्ट लुक एट दिस। यहाँ से जाते समय करंट ऐसा ही जाएगा ना। एंड व्हाट इज दैट करंट? इट इज I1 ओनली। इट इज I1 ओनली। समझे क्या? इजंट इट? सो I1 और यहाँ पर I2 है। चलिए बताइए मुझे, व्हाट यू गेट देयर? इट विल बी, वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो IR क्या होगा? निगेटिव होगा। बराबर है क्या? It will be minus I1 into 2। Again we are going in the direction of current, so it will be minus I1 into 2। और यहाँ पर हम opposite direction में जा रहे हैं, so it will be plus I2 into 2 is equal to 0। There is no EMF। So can I divide throughout by 2? तो ये क्या मिल जाएगा? I2 is equal to 2I1। I2 is equal to, so this is equation 1 and this is equation 2। So I2 is 2I1, 2I1 plus I1 3I1, 3I1 is equal to 6 and therefore I1 is equal to 2 amps and therefore I2 is equal to 4 ampere। So what is the answer here? 2 ampere and 4 ampere, A is the answer। Is this clear to you all? Any doubts about that? This was easy actually, बहुत easy था, right ना? Isn't it? चलिए आगे बढ़ते हैं। We'll go for the next question। क्या दिया है क्वेश्चन में? 79। 79 क्वेश्चन। 7 वोल्ट बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। ये कल के जैसा प्रॉब्लम है, कल के ही जैसा प्रॉब्लम है ये, सेम। 7 वोल्ट बैटरी and 3 volt battery with internal resistance 1 ohm, they are connected to a 10 ohm resistance as shown in the figure। find the current in the 10 ohm resistance। सेम कल जो हमने कल सॉल्व किया था इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप बताइए मुझे कैसे सॉल्व करना है। लेट मी से दिस इज गिविंग द करंट I1 and this is giving the current I2। हाँ, बैटरी के टर्मिनल्स उल्टे थे कल। I'll call this as I1 and this is I2। तो यहां से भी I1 ही होगा, याद रखिए। बराबर है क्या? अब मुझे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। हाउ आई गोइंग टू स्प्लिट दिस? सो आई वुड से यहां पर जो करंट होगा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। आई विल एज्यूम समथिंग डिफरेंट हियर। ये अगर I है, लेट मी से दिस इज I
दिस इज ऑल्सो आई, दिस इज आई एंड दिस इज ऑल्सो आई। इसमें से यहां जाएगा जो करंट, इसको I1 बोलूंगा, तो व्हाट इज दिस करंट? दिस करंट इज I माइनस I1, सही है। तो यहां से पास होने वाला करंट भी I माइनस I1, और यहां से आने वाला भी क्या होगा? I माइनस I1। ये तो I1 है, तो ये प्लस I1 और माइनस I1 कैंसिल होगा। सो व्हाट इज द करंट गोइंग इन दिस? इज अगेन I। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे दो अननोन्स है। आई वॉन्ट एक्चुअली I1, मुझे एक्चुअली I1 चाहिए, लेकिन इसके अंदर I भी अननोन ही है। सो दीज आर द टू अननोन्स, आई वुड से दीज आर द टू अननोन्स, इजंट इट? तो अब मुझे यहाँ पे एक लूप लेना पड़ेगा। सो आई विल कंसीडर द फर्स्ट लूप। व्हाट इज द फर्स्ट लूप? आई विल से दिस इज द लूप, दिस इज द फर्स्ट लूप। एंड करंट के दिशा से मैं यहाँ पर उल्टा लूप भी ले सकता हूँ, इस तरह से। सो लेट मी से दिस इज A, P2, B, C एंड D। समझे? किरचॉफ्स करंट लॉ ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। इट्स ओनली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ दैट इज टू बी अप्लाइड। सो बाय KVL फॉर द लूप A, P2, P1, D, A, P2, P1, D, A, और दूसरा बाय KVL फॉर द लूप P2, P1, P2, P1, C, B, P2, ऐसे। तो लेट्स अप्लाई द लॉ नाउ। चलिए बताइए, वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं। वेल, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। द करंट इज I1, रेजिस्टेंस इज 10, सो इट विल बी माइनस I1 इंटू 10, सही है। फिर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना 2 ओम का, यस और नो? 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो करंट इज I, सो इट विल बी माइनस I into 2, and we are going from negative to positive terminal of the battery in the direction, तो EMF is positive, so it will be plus 7। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, बढ़िया है, हाँ मस्त है। तो what is the equation I get there? It will be 10I1 plus 2I is equal to 7। नहीं, माइनस को मैंने मन ही मन में ट्रांसफर कर दिया उधर, तो वो इक्वल टू 7। समझ में आ गया? दूसरा वाला लूप अभी हम लिख रहे हैं। वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम P2 टू P1, so it will be minus I1 into 10। नाउ यहाँ पर हम करंट के उल्टे दिशा में जा रहे हैं, यहाँ पर भी करंट के उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पर IR है, वो IR क्या होगा? नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा। सो इट विल बी प्लस I माइनस I1 इंटू 1 ओम, एंड वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो EMF इज माइनस, EMF इज माइनस। पिक्चर मत देखो रे, आंसर करो। -3 वोल्ट इज इक्वल टू 0। समझ में आया? नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, व्हाट यू गेट देयर? It will become minus 10I1 minus I1, that is minus 11I1 plus I is equal to 3। Is this okay? This is equation number 2। मुझे I को एलिमिनेट करके सिर्फ I1 चाहिए, मुझे I नहीं चाहिए। सो I नहीं चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा -2 से। समझे? क्या मिलेगा? -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। सो दिस विल बिकम 22I1 minus 2I is equal to -6, is equal to -6। What do you get there? This will give me, बोलो, जो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 32I1 is equal to 1। therefore I1 is equal to 1 upon 32, 1 upon, हाँ नहीं, -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस और ये माइनस, प्लस 22I1, और ये -2I is -6, सही है ना? Isn't it? Now that is nothing but if I'll divide this by 100 and multiply this by 100, तो ये 1/3 है ना उसका, 3 सा, so 3 upon 100,
something like that. So this is 0.03 ampere. So what is the answer here? 0.03 ampere. C is the answer. Is this clear to you all? Any doubts about that? Is that clear? समझ में आया सबको? So that was a good question. कल हमने किया था वो बैटरी का डायरेक्शन सेम, मतलब लाइक पोल्स वेर कनेक्टेड, यहाँ पर अपोजिट पोल्स आर कनेक्टेड. दैट्स द डिफरेंस हियर. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए. क्वेश्चन नंबर 80. Once again, this is the question which is based on the Kirchhoff's voltage law KVL, जहाँ पर लूप अप्लाई करना है. In the circuit shown the value of I1, I2 and I3 are. सब दिया है उन्होंने. दिस इज I1, ये है I3 और ये है I2. ठीक है. So let me just put the points here. I'll say these points are P, Q, R, O, M, N, whatever. I'll say this is A, B, C, D and E, जो भी है. अब मुझे यहाँ पे लूप लेना है. आप बताइए कैसे लूप ले ले आपके हिसाब से. पहला मैं किरचॉफ्स करंट लॉ A, B, C, D, E, I'll call this as point F. By Kirchhoff's current law at point F, क्या मिलेगा? I1 is equal to I2 plus I3. इक्वेशन 1. बाय द वे यहाँ पर तीन अननोन्स है, I1, I2, I3, so I have to have 3 इक्वेशंस. उसमें से पहला इक्वेशन मुझे मिल चुका है. अब मुझे बाकी के दो इक्वेशंस चाहिए यहाँ पे. आई नीड 2 more इक्वेशंस हियर. तो क्या करेंगे बताइए आप मुझे. व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? दिस विल गिव मी, बोलिए. बाय, अब मुझे लूप चाहिए वहां पे. विच लूप आई विल टेक? एनी लूप आई विल टेक. कोई भी लूप ले सकते हैं. आप बताइए कैसे लेना है. ओके, ए एफ सी बी ए. तो ये लूप कुछ इस प्रकार जा रहा है. बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, व्हाट इज द लूप हियर? द लूप इज ए एफ सी बी ए. इज दैट क्लियर? इजंट इट? ऑलराइट. अब दूसरा लूप कौन सा लेना है भाई? अगेन बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर द लूप, what loop we'll take here? Any loop we can take, जो भी चाहिए. F, okay, F E D C F, F E D C F. कोई भी लूप आप लो सकते हो, आंसर वही आएगा तुम्हारा. इट्स नॉट डिफरेंट एट ऑल. चलिए पहला इक्वेशन बताइए. ए एफ कुछ नहीं है. एफ टू सी, बैटरी भी है रेजिस्टेंस भी है. बैटरी गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, -27. समझ में आ गई बात? करंट के ही दिशा में हम भी जा रहे हैं, तो आई आर इज नेगेटिव. I2 इंटू 6 माइनस I2 इंटू 6. फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं. अब देखिए करंट भी यहाँ पर आएगा. यहाँ से करंट की अगर हम डायरेक्शन दिखाए तो ये करंट इस प्रकार जाएगा. यहाँ पर I3 होगा, यहाँ पर भी I3 ही होगा. यहाँ से I2 आएगा और ये यहाँ पर I2 एंड I3 दोनों मिक्स होके क्या हो जाएंगे? I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, इट विल बी I1. इज दिस ओके? तो यहाँ से व्हाट इज द करंट फ्लोइंग हियर? इट विल बी I1. इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? चलिए बताइए क्या हो जाएगा ये. तो यहाँ पे कोई नहीं है. इट्स इन दिस, वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो इट विल बी माइनस I3 इंटू 4. अगेन यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम करंट के विपरीत दिशा में जा रहे हैं. So it will be plus, it will be I2 into 6 and we are going from negative to positive terminal of the battery, so EMF is positive plus 27 is equal to 0. Any doubts about that? और यहाँ पे भी is equal to 0 ही आएगा ना. ये क्या हो गया? 27 है. अच्छा मैंने ये पूरा नहीं किया अभी तक. ओके, -27 -6I2 minus 2I1, I1 into 2, we are going plus 24 is equal to 0. समझ में आ गई बात? Now what? I think I'll transfer these things on the other side. तो ये बनेगा 2I1 plus 6I2
2i1 plus 6i2 is equal to -3, इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ये उधर चला जाएगा। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से आई विल सब्स्टिट्यूट फॉर i1 हियर, यहाँ पे मैं i1 के लिए सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। आई विल सब्स्टिट्यूट फॉर i1 हियर, इधर। तो क्या मिल जाएगा ये बताइए, इट बी 2 टाइम्स i2 plus i3 plus 6i2 is equal to -3। मतलब 2i2 plus 6i2 is 8i2 plus 2i3 is equal to 3। I'll call this as equation 1 dash। समझ में आ गया? Now this is equation in i2 and i3, this is also equation in i2 and i3। I think I can solve them simultaneously because this is 6i2 minus 4i3 is equal to -27। this is equation 1 है, ये है 2 और ये है 2 डैश और ये है इक्वेशन 3। अब इसको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व इट साइमल्टेनियसली? आई थिंक आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 ताकि ये 4i3 हो जाएगा, -4i3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 8 2 जा 16i2 प्लस 4i3 is equal to 6। okay, well this will give me what, adding them, what do you get there, just add them। तो ये कैंसिल हो जाएगा and this will become 22i2 is equal to -21। समझ में आ गई बात? therefore what is i2 is equal to -21/22 एम्पियर। तो -21/22 कोई है क्या यहाँ पे? ऐसा एक भी नहीं है, इट्स नॉट दैट। कुछ गड़बड़ किया हमने। चेक, यहाँ पे -3 था तो इधर मुझे -3 ही लिखना पड़ेगा ना, तो दिस विल बी -3। तो ये -6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 32 -33। अगर ये -33 हो गया तो दैट विल बी -3/2 एम्पियर। अगर ये -3/2 एम्पियर है तो आई गॉट द आंसर हियर। आई नीड नॉट कैलकुलेट एनी अदर थिंग। समझ में आ गई बात? आई नीड नॉट कैलकुलेट i1 एंड i3, कोई जरूरत नहीं। आप क्रॉस चेक कर सकते हो लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करने की जरूरत। इज दैट ओके? इज दैट ओके? समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। 81 कैसे करेंगे? 81 आप ट्राई कीजिएगा, शायद वहाँ पे मैं चेक करूंगा बाद में। इसको आई विल कीप इट पेंडिंग फॉर अ व्हाइल, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 81 82 83। 81 82 83 मैं बाद में सॉल्व करना चाहूंगा। So I'll go for the questions based on Whiston's bridge. I'll go for the questions based on Whiston's bridge. Question number 85. What is the balancing condition in the Whiston's network? In the Whiston's network, P, Q, R and S, these are given. The resistance with which S is to be shunted in order that the bridge may be balanced is. तो ये अपने को पहले तो वहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा सर्किट। 81 82 83 मैं बाजू में रख रहा हूँ। आई एम गोइंग फॉर दिस डिस्टेंस। तो कैसे करेंगे? आई विल जस्ट से, अगर ये है डिस्टेंस नेटवर्क, ठीक है, लेट मी से दिस इज P is equal to 2
Q is 2, R and S ना, R and S, okay. नाउ हमारे टेक्स्ट बुक में उन्होंने R यहां पर लिया हुआ है, और S यहां पर लिया है। इस क्वेश्चन में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से तो आंसर अलग आएगा। लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर हम वैसा लेते हैं तो आंसर अलग आएगा, और यहां पर जो उन्होंने लिया है इट्स आर हियर। अगर इस बुक की बात करें तो जैसे पी क्यू आर एस, और हमारे टेक्स्ट बुक में पी अपॉन क्यू डिवाइड बाय एस अपॉन आर दिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो इन्होंने आर का वैल्यू भी 2 दिया है, 2 ओम, एंड एस इज इक्वल टू 3 ओम। यहाँ पर R इज इक्वल टू 2 ओम एंड S इज इक्वल टू 3 ओम। हाँ, यहाँ का आंसर वही आएगा, सेम आएगा। नाउ दे से the resistance with which S is to be shunted in order that the bridge may be balanced is shunted। मतलब क्या होता है? What is the meaning of shunted? Shunt का मतलब होता है shunt is a parallel resistance। आगे जाके इस चैप्टर में आने वाला है shunt क्या है। It's a parallel resistance। तो यहाँ पर एक कोई parallel resistance बनाना पड़ेगा अपने को। I'll have to have some parallel resistance here। समझ में आ गई बात? वो parallel resistance में बोलूँगा, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? Let me say that this is some x and I have to find out what is this x is equal to। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब अगर इधर देखो या इधर देखो, ये अगर एक बैलेंस नेटवर्क होना चाहिए, अगर ये फॉर द बैलेंस नेटवर्क व्हाट इज दिस, P अपॉन Q शुड बी S अपॉन R, है ना? या फिर यहां पर देखा जाए तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, R अपॉन S नहीं बोलना चाहिए, S और X का जो रिजल्टेंट है, लेट मी कॉल दिस एज S डैश। S और X का जो रिजल्टेंट है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसे मैं क्या बोलूंगा? S डैश बोलूंगा। वैसे यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा उसके हम S डैश बोलेंगे। सो लेट मी कॉल दिस एज S डैश। यस और नो? इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज देयर, तो ये P Q 2 2 2 2 S डैश आई डोंट नो, लेकिन R कितना होना चाहिए? R is also 2। तो ये अगर कैंसिल कर देते हैं हम, then what is the resultant of these two? ये इसका रिजल्टेंट S dash is equal to 2। यहाँ पर भी वही आएगा, S dash is equal to 2। Are you understanding what I'm saying there? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे इसका मतलब है इन दोनों का या इन दोनों का रिजल्टेंट। नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस? 1 अपॉन S dash is equal to 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन X। नाउ 1 अपॉन S dash मतलब 1 अपॉन 2 is equal to 1 upon S मतलब 1 upon 3 and 1 upon X I have to calculate। yes or no? तो 1 upon X is equal to 1 by 2 minus 1 by 3, that is 3 minus 2, 1 upon 6। so what is X equal to? 6 ohm। so it has to be shunted with what value? 6 ohm resistance। D is the answer। is this okay? Any doubts about that? This was easy actually। I wanted to give this as a homework, but anyhow I solved it। is that okay? Because I will not be solving any questions from the this type of questions from the textbook। इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया है। Is that okay? अगर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए होते इस टाइप के तो मैंने ये वाला नहीं किया होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86। Four resistances 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm and 4 ohm are respectively used to form a resistance bridge। सेम टाइप है मुझे लगता है। चार रेजिस्टेंसेस, वैल्यूज क्या दिए है उसके? So let me say these resistances are so this is P is equal to 3 ohm, Q is equal to 3 ohm, and I'll prefer to write this as R is equal to 3 ohm and S is equal to 4 ohm। और मेरा बैलेंसिंग कंडीशन P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S मैं लिखूंगा, चलेगा ना? Isn't it? चलिए ठीक है। The 4 ohm resistance is short circuited with the resistance R। The 4 ohm resistance
इज ये वाला इज शॉर्ट सर्किटेड विथ रेजिस्टेंस आर। अच्छा, तो मुझे इसको आर नहीं बोलना, पी क्यू आर एस नहीं बोलना चाहिए, मुझे इसको कुछ और ही बोलना पड़ेगा। दिस इज 3 ohm. The 4 ohm resistance is short circuited with resistance R in order to get the bridge balanced. Short circuited मतलब the 4 ohm resistance is short circuited. What is the meaning of 4 ohm का resistance short circuited? It means the same. यहाँ पर एक पैरेलल रेजिस्टेंस डाल दिया है, इसको शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। दिस इज रेजिस्टेंस आर। समझ में आ गई बात? अब मैं इन रेजिस्टेंस को नाम क्या दूंगा? लेट मी कॉल दिस एज ए, दिस इज बी, दिस इज और रेजिस्टेंस ए, रेजिस्टेंस बी, सी, और ये जो है इसको अगर मैं डी बोलता हूं तो इन दोनों का जो भी कुछ रिजल्टेंट आएगा उसको मैं क्या नाम दूंगा? व्हाट एम आई गोइंग टू कॉल दिस एज? आई विल कॉल दिस एज डी डैश। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो डी डैश। अब बैलेंस नेटवर्क का कंडीशन आप लोग मुझे बताएंगे प्लीज। नहीं, एबीसीडी है ना यहाँ पे, एबीसीडी, ए बी बी नहीं, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी रे, नहीं गलत, डी डैश। सो दिस इज 3 upon 3 is equal to 3 upon d dash. That means d, that means what you get there? D dash is equal to 3. But what is d dash? D dash is the पैरेलल का जो रिजल्टेंट है, मतलब कॉम्बिनेशन। तो 1 अपॉन डी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन आर। सही है कि नहीं है? तो 1 अपॉन डी डैश 1 अपॉन 3 is 1 upon d is 1 upon 4 plus 1 upon r. So what does this give me? 1 upon r is equal to 1 by 3 minus 1 by 4. 4 minus 3 is 1 upon 12. So what will be? R is equal to 12 ohm resistance in Pyare Lal. 12 ohm resistance in parallel. Is this clear? Any doubts? सेम टाइप जो ऊपर किया था उसी टाइप का है। तो आई थिंक आई शुड हैव गिवन दिस एज अ होमवर्क, बट एनी हाउ आई सॉल्व्ड इट। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 87। चलिए क्या दिया है यहाँ पे? कैन यू रीड द क्वेश्चंस हियर? क्वेश्चन यहाँ पर दिस इज 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है ये। 4 resistors are connected as shown in the figure 1 2 3 4. The battery of a 6 volt battery of negligible resistance. Okay, this is a 6 volt battery, उसका internal resistance कुछ नहीं है। It's connected across the terminals A and C. The potential difference across the terminals B and D is. यहाँ का potential difference चाहिए उनको। How is that? कैसे करेंगे? टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी खेलते हैं। लेट्स प्ले टॉम एंड जेरी। कल जो हम कर रहे थे वही करेंगे। तो आई विल ट्राई टू सी कि क्या मैं यहाँ पर गेहूं और कंकर रख सकता हूं। ठीक है, अब मुझे बताइए, दिस इज ए बी सी and D. Now tell me the resistances. What is the resistance between A and B? Very good, 5 ohm. Resistance between B and C? Very good, 15 ohm. Resistance between C and D? Very good. And resistance between D and E, but E is connected to A. So this is, in other words, A. Hello, hello, hello. So this is 10 ohm. सही है? And the battery is connected across A and C. Okay. तो यहाँ पर across A and C we have got a battery which is कितना? A is plus 6 volt battery.
अच्छा, now let me call this as P, Q, R and S. So let's check what is P upon Q. 5 by 15 is 1 by 3. And R upon S, 10 by 30, 1 by 3. Oh my God, what do you say? Therefore, P upon Q is equal to R upon S. Therefore, it's a balanced network. Balanced network का मतलब समझाइए मुझे प्लीज. Yes, the potential at B is equal to potential at D. Therefore, potential at B minus potential at D is equal to 0. So, the potential difference across B and D is 0. A is the answer. Is this clear to all? Any doubts? It's different, you know. समझ में आ रहा है? Question number 88. Question number 88. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. मुझे तो बहुत पसंद है. आपको क्या लगता है? देखिए, बताइए मुझे. Resistances PQ SR are arranged in a cyclic order to form a balanced resistance network. Cyclic order में दिया है बाबा. It's in the cyclic order वैसे. PQ SR. This is PQ SR. So let me say this is P Q S R. मतलब what is the balancing condition here? P upon Q is equal to R upon S. ऐसा होगा. The ratio of power consumed in the branches P plus Q. ये balanced network है of course. Now the power consumed in P plus Q and R plus S is the power consumed in this. How was that? Now power dissipation in the resistance R. I'll write here a formula. Power dissipation in resistance R. Power dissipation in resistance R is given by, बताइए क्या होता है power? Power is equal to VI ना? Power is equal to VI, but by Ohm's law, R is equal to V upon I or V is equal to IR. V is equal to IR. Correct ना? या तो फिर I is equal to V upon R. तो I'll substitute for I. I के लिए मैं substitute कर दूंगा. So what am I going to get there? This power is equal to V into V upon R, that is V square upon R. Is this clear to you all? Is this okay? This is V square upon R. Now, power dissipation in the upper branch, that is P plus Q. कितना होगा? यहाँ का power dissipation है, it is inversely proportional ना, ये power dissipation यहाँ का और यहाँ का potential difference तो same ही रहेगा. So for this branch, whatever potential difference is there, वो इस branch के लिए भी वही होगा. So if I'll apply it here, this will become V square upon. Now what is the effective resistance of these two? It is P plus Q. समझ में आ गई बात? Hello. Similarly, what is the power dissipation in this lower branch R plus S? It is equal to V square upon R plus S. Now let us take the ratio. इसका ratio अगर हम ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा मुझे? Power dissipation in P plus Q divided by power dissipation in R plus S is equal to, ये cancel हो जाएगा and this will become R plus S upon P plus Q. समझ में आ गया? लेकिन अब मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, यूज करना है यहाँ पे. आई वांट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर. तो यहाँ पर लेट मी से P upon Q is equal to R upon S. So can I just simply add here 1 on either side? It will give me the same. सही है. अब इसका LCM ले लेंगे तो ये बन जाएगा P plus Q upon Q
इज इक्वल टू आर प्लस एस अपॉन एस, यस और नो? अब ये आर प्लस एस इधर लाइए और क्यू जो है वो उधर भेजिए, तो क्या मिल जाएगा? पी प्लस क्यू अपॉन आर प्लस एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। कैन आई से सो? तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल चाहिए मुझे, सो इज दिस एस अपॉन क्यू? इज दिस एस अपॉन क्यू? अच्छा, बट बाय द वे यहाँ पर अगर हम दोबारा देखते हैं कि अगर Q को इधर भेजिए और R को इधर भेजिएगा तो व्हाट इज Q अपॉन S इज आल्सो इक्वल टू Q अपॉन S इज आल्सो इक्वल टू P अपॉन R। कैन आई से सो? इजंट इट? अब मुझे चाहिए R प्लस S अपॉन P प्लस Q विच इज R अपॉन P, which is R upon P. So what is the answer here? B is the answer here, and I think it's a star problem. Is it? It's a star problem. Is it? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें हमने वेस्टर्न नेटवर्क और पावर का फॉर्मूला भी यूज कर लिया, कंपोनेंट और डिविडेंड भी यूज कर लिया. इज दैट क्लियर टू ऑल? दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, I'll go for the next question now. Question number 89. Question number 89. Again I'll call this as a star problem. In the shown figure, आप ही बताइए स्टार है कि नहीं, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको. In the shown figure, what is it saying here? In the shown figure, the bridge is balanced. Okay. अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, then the current flowing through 2 ohm resistance is. ब्रिज बैलेंस है क्या चेक कर लो पहले. I'll call this as P, Q, R and S. So what is P upon Q? है तो सही, 4 upon 2 that is 2, and R upon S which is 10 upon 5 is also 2. सही है. ओके, तो ये P अपॉन Q R अपॉन, इट्स अ बैलेंस नेटवर्क. बैलेंस नेटवर्क का मतलब समझाइए मुझे. बैलेंस नेटवर्क का मतलब समझाइए मुझे. मतलब पोटेंशियल एट Q इज इक्वल टू पोटेंशियल एट S. तो आइदर यू मेक द कॉन्टैक्ट, ब्रेक द कॉन्टैक्ट. सो कैन आई जस्ट इरेज दिस? नाउ सिंप्लीफाइड नेटवर्क में दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, देन yes or no? And these two resistances are also in series. तो क्या मिल जाएगा बताइए मुझे. In this case the simplified network will be like कि ऊपर का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4 प्लस 2 6 ओम, और नीचे का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 15 ओम. इज दिस ओके? एंड दिस इज 2 एम्पियर करंट कमिंग इन. यस और नो? इज दिस ओके? समझ में आ रहा है सबको? ये मुझे चाहिए यहां से. तो व्हाट आई वुड से, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ये करने से अच्छा है मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर लूँ ना, वो सही रहेगा मेरे ख्याल से. सो लेट मी अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. क्या मिल जाएगा? बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. लेकिन उसके पहले मैं बोलूंगा, अगर ये 2 एम्पियर है, यहां से पास होने वाला करंट है, लेट मी से इट इज आई. अगर 2 में से आई इधर गया तो इधर कितना गया? करेक्ट, 2 माइनस आई. यही बोला ना तुम लोगों ने मन ही मन में. स्मार्ट. ठीक है, इज दैट ओके? अब ये तो मैंने हटा ही दिया है, तो नाउ आई विल कंसिडर, यहाँ पे एक लूप कंसिडर करूंगा. कौन सा लूप होगा ये? आई विल से दिस लूप इज, यार इसको हमने पी क्यू को बोल दिया. यहां से ये ऐसा वाला लूप कंसिडर करेंगे. कंसिडर द लूप. अब उस लूप के लिए मुझे आप इक्वेशन बताइए. करेक्ट, क्या बोले आप लोगों ने? आई इंटू 4 माइनस रे. अब अगर यहां पर आई है तो यहां पर भी तो आई ही होगा ना. क्यों होगा? क्योंकि यहां से करंट ही नहीं फ्लो हो रही है. करेक्ट ना? यहां से 2 माइनस आई है तो यहां से भी फ्लो होने वाला कितना होगा? 2 माइनस आई ही होगा. वेरी गुड. तो अब बताइए क्या होगा? माइनस 4 आई. यहां पर भी वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो इट विल बी माइनस आई इंटू 2. फिर यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इट विल बी प्लस 2 माइनस आई इंटू 5 प्लस 2 minus I into 10 is equal to 0. Open the brackets. This is minus 4I minus 2I plus 10 minus 5I plus 20 minus 10I is equal to 0.
तो दिस इज 4 6 6 5 11 11 एंड 10 21, तो 21 उधर जाएगा तो विल बी 21 I is equal to this is 10 or 20, this is 20, so what is I is equal to 20 upon 21, अच्छा हाँ 30 होगा नहीं क्या, this is 30, so 3 से डिवाइड करिएगा 10 upon 7, 10 by 7 which is the correct answer, A is the correct answer. Is this clear to all? Any doubts about that? अच्छा, should I call this a star or half star या नो स्टार या नो स्टार, आप लोगों के ऊपर डिसाइड कीजिएगा. बैलेंस नेटवर्क है और बैलेंस नेटवर्क के ऊपर फिर मैंने केवीएल अप्लाई कर दिया, सो हाफ स्टार बोल देते थे आप लोग, अगर बोल रहे थे इट्स ओके, या फिर नो स्टार. इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स? एम आई गोइंग वेरी फास्ट? मित्र ब्रिज, विस्तार विद मित्र ब्रिज नाउ. हाँ जी बोलिए ना. पॉज करता हूँ आपको. लेट्स कंटिन्यू. सो क्वेश्चन नंबर 90 क्या दिया है यहाँ पे? मीटर ब्रिज का डायग्राम तो आपको याद ही होगा. अगर नहीं याद तो मैं आपको बता दूं मीटर ब्रिज का डायग्राम कैसे होता है. कि भाई यहाँ पर एक मेटल स्ट्रिप होता है, देर आर टू एल शेप्ड स्ट्रिप्स हियर, यहाँ पर एक एल शेप्ड स्ट्रिप होता है, एंड देन देयर इज अ वायर, देयर इज अ वायर जो कि ऐसा होता है, राइट. एंड फिर वहां पर गैल्वेनोमीटर और ये होगा नल पॉइंट. देन देयर इज an unknown resistance here and a known resistance here, isn't it? This is R, this is X, this is LX and this is LR. समझ में आ गया? LR can be written as 100 minus LX. चलिए, with when a metal conductor connected to a left gap of the metal bridge is heated, ये जो कंडक्टर है वो हीट किया है, the balancing point क्या होता है? The balancing point लेफ्ट गैप में अगर अगर उसको हीट किया जाता है तो व्हाट हैपेंस टू द मेटल कंडक्टर व्हेन इट इज हीटेड? मेटल कंडक्टर इज हीटेड. मेटल कंडक्टर अगर हीट करोगे, मेटल कंडक्टर अगर हीट करोगे, इफ इट इज हीटेड व्हाट हैपेंस देन इट्स रेजिस्टेंस क्या होता है उसका? उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है. समझ में आ गई बात? अच्छा, यहाँ का इक्वेशन बोलता है x अपॉन r इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर. तो अगर इसको अगर x को इंक्रीज किया तो एल एक्स को इंक्रीज किया जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. मतलब ये जो नल पॉइंट है एल एक्स बढ़ेगा तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. सो व्हाट इज द आंसर हियर? इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट. ए इज द आंसर. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड? देखिए इसमें विस्टन्स मीटर ब्रिज भी था और 11th का कॉन्सेप्ट कि हाउ रेजिस्टेंस चेंजेस विद द टेम्परेचर फॉर द मेटल कंडक्टर, ये वाला कॉन्सेप्ट भी था. दोनों का कॉम्बिनेशन था इसमें. समझ में आ गई बात? Isn't it? 11 plus 12 दोनों का नॉलेज था इसमें. दिस इज 11th एंड दिस इज 12th. अंडरस्टूड? अगला क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the meter bridge experiment, the ratio of the left gap resistance to right gap resistance is 2:3. X upon R is 2/3. The balance point from the left is, that is equal to Lx upon 100 minus Lx ना, बराबर है क्या? तो that will be 40 आएगा, 40 सेंटीमीटर आएगा. देखिए ना, दिस इज 200 minus 2Lx is equal to 3Lx, that is equal to 5Lx. So Lx is equal to 40 centimeter. Any doubts about that? Is this okay? Am I going very fast? Is this understood? समझ में आ गया ना? Proceed next question. A wire connected in the left gap of the meter bridge
balance 10 ohm resistance in the right gap to a point which divides bridge in the ratio 2:3. A wire connected in the left gap of the meter bridge. Let me just take this diagram here. आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, इसके लिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया. This is the wire. Left gap of the meter bridge balance 10 ohm resistance. R is equal to 10 ohm. Okay. In the left gap, in the right gap, which divides to the point which divides the bridge in the ratio 3:2. So Lx upon Lr is equal to 3/2 is actually is equal to x upon 10. 10 ohm है ना ये? हाँ तो अच्छा ओके. If the length of the wire is 1 meter, length of 1 ohm wire is, अच्छा तो मुझे इसका so therefore this is 2 5 so x is equal to 15 meter, isn't it? लेकिन इस वायर का लेंथ है 3 मीटर 1 मीटर. इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, द लेंथ ऑफ दिस वायर is 1 meter, isn't it? This is 50 ohm, isn't it? तो 15 ओम के लिए 1 मीटर, तो 1 ओम के लिए कितना मीटर, इसके लिए इतना, तो उसके लिए कितना. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? isn't it? So length of the wire is found out by this into this, so it will be 1 upon 15. That will be 1 upon 15 मतलब कितना आएगा 0.0 लिया तो 100 हो गया. 10 100 66666 आएगा, मतलब 67 meter, 0.067 meter. What is the answer here? B. Is that understood? Star, half star, 0 star या half star, whatever. Easy था? This was easy actually. हाँ हाँ, ये कैलकुलेशन के लिए बस, क्योंकि जनरली आप लोग इधर जाके थम जाते हो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा क्या हो गया 15 मीटर है रे बाबा, ओम है रे बाबा, ऐसे गुस्से से मत देखो उसको. दिस इज ओम. मुझे पता था, ये स्टूड अप ऐसे रहा. हाँ यार करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Well, that will be the last question of this thing. What is the value of unknown resistance R if the galvanometer shows null deflection? I mean that's so easy. क्योंकि अगर ये 40 है तो ये 60 सेंटीमीटर होगा, करेक्ट ना? And it will be 65 upon R is equal to 40 upon 60. That is equal to 2/3. Isn't it? 65 into R. So R is equal to 65 into 3 upon 2. 5 3 15 1 7 3 18 1 19 195 upon 2. 92 18 1 7 14 97.5 ohm. Is this okay? Any doubts about that? Is this very clear? Well, that is it about this. अभी पोटेंशियोमीटर के कुछ क्वेश्चंस है and well, so टेक्स्ट बुक के कुछ MCQs यहाँ पे मैं सॉल्व करना चाहूँगा. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 228, उसका ये MCQ है. इट्स अ गुड MCQ, अच्छा MCQ है. In the following circuit diagram, an infinite series of resistance is shown. 1 ohm 2 ohm 1 ohm 2 ohm जो दिया है वो कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा, ऐसा उन्होंने दिया है. समझ में आ रहा है? So this is 1 ohm 2 ohm 1 ohm 2 ohm 1 ohm 2, this is to infinity. Then the equivalent resistance between points A and B is, the equivalent resistance between points A and B is. एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, इंफिनिटी मतलब कितना? इंफिनिटी सही है. इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी. ओके. इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं. समंदर की पानी में कितनी बूंदे हैं? इंफिनिटी. समुंदर की पानी में इंफिनिटी बूंदे हैं, उसमें से एक बूंद मैंने निकाली तो कितना बचा? गलत, क्योंकि इंफिनिटी उतना है जो बहुत ज्यादा है.
और बहुत ज्यादा में से एक निकाला तो कितना बचा? बहुत ज्यादा। समझ में आ गया? सो दोबारा मेरा सवाल है, समंदर की पानी में से एक बूंद निकाला तो क्या बचा? समंदर। इट इज नॉट इंफिनिटी माइनस वन, क्योंकि उस वो इट इज समथिंग विच कैनॉट बी काउंटेड, सो यू कैनॉट परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन। तो आप इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी क्या बोलोगे? इंफिनिटी। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी। Infinity minus 1, infinity. Are you understanding what I'm saying? So there are infinitely many steps. I repeat, there are infinitely many steps, isn't it? यहाँ पर infinitely many steps है, उसमें से एक स्टेप मैं कम करता हूं, उसमें से एक स्टेप मैं कम करता हूं। बहुत सारे स्टेप्स है यहाँ पे, समझ में आ रही है बात? उसमें से एक स्टेप कम करता हूं, तो अब ये कितने स्टेप्स बचे हैं? करेक्ट। समझ में आ गई मेरी बात? इज दिस ओके? लेट मी से कि भाई यहां पर इसका जो रिजल्टेंट है ना, वॉट एवर दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी, एंड देयर आर इन्फिनेटली मेनी स्टेप्स, देयर आर इन्फिनेटली मेनी स्टेप्स, तो इन्फिनिटी स्टेप्स का यहाँ पर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो कितना है? तो आई विल से इट इज आर ए बी। दिस इज फॉर इनफाइनाइट स्टेप्स। करेक्ट? समझ में आ गई बात? अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पे इनफाइनेटली मेनी माइनस वन, इनफाइनाइट स्टेप्स का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर ए बी, तो इनफाइनेटली माइनस वन जो स्टेप्स है उसका रेजिस्टेंस भी आर ए बी, इजंट इट? इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी आएगा फॉर इनफाइनाइट माइनस वन steps. Yes or no? If I'll remove that, अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? How can I represent this? Just look at this now, please check कि भाई this is 1 ohm resistance, फिर this is 2 ohm resistance, 1 ohm, 2 ohm, okay, and this is, तो इसके सबके लिए what is this going to be? What is this going to be? This is equal to RAB. Is that clear to you all? Did you all understand this thing? इंफिनिटी का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर ए बी आएगा, इंफिनिटी माइनस वन जो अगर एक स्टेप मैंने कम किया तो भी आर ए बी आएगा। तो मैं ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पे दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें 1 ओम है, 2 ओम है, एंड दिस इज ए पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो मुझे इसको अभी सॉल्व करना है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? नो डाउट दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम, नो डाउट दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम। ओके, अब तो इस रेजिस्टेंस को मैं x बोलता हूं, व्हाट इज दिस इक्वल टू x, और वही मुझे फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस अक्रॉस a एंड b, लेट्स से दिस इज x, आई वांट टू फाइंड आउट दैट। अब देखिए यहां पर दीज टू आर इन पैरेलल, दीज टू आर इन पैरेलल, तो इसका दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या? वो x प्लस 2 अपॉन 2x, लेकिन इसका रेसिप्रोकल, समझ में आ गया? 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो ये सर्किट कैसे बनेगा? देखिए दिस इज 1 ओम एंड व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। समझ में आ गई बात? और ये तो दिस इज a, दिस इज b, करेक्ट? समझ में आ गया? नाउ दिस टू आर इन सीरीज, एक के पीछे एक है ना, दिस इज इन सीरीज ना, तो इसका क्या आएगा इफेक्ट? आंसर बताइए क्या आएगा इसका? तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, बट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी दैट आई ऑलरेडी नो दैट दिस इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू x ना, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। समझ में आ गया? तो दिस इज वन इक्वेशन इन x, आई विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन इन x। कैसे बनेगा वो बताइए? सो दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 2 प्लस x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x। समझ में आ गया? सो 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, मतलब कुल मिलाकर क्या आएगा बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0,
2 1 जा, so x minus 2 into x plus 1 is equal to 0. मतलब x is equal to 2 ohm हो सकता है या x is equal to minus 1 ohm हो सकता है. This is nonsense. This is accepted. That is the answer. Is this okay? So what is the answer here? 2 ohm. Is that okay? Star है? बिल्कुल है. Any doubts about this? Let me go for the next question now. अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन. क्या दिया है देखिए यहाँ पे. It says four resistances 10 10 10 15 form a resistance network. What is the shunt required across 15 to balance the bridge? Homework easy है ये नहीं करूंगा मैं solve. This is not to be solved. कौन सा फिफ्थ वाला कर लूंगा. I'll do the fifth one. थोड़ा सा अलग टाइप का ये मतलब इजी है वैसे. A circular loop has a resistance of 40 ohm. 40 ohm. Circular loop has a resistance of 40 ohm. 2 points P and Q of the loop, which are 1/4 of the circumference apart, are connected by 24 volt battery. यहाँ पर एक पॉइंट है P और यहाँ पर एक पॉइंट है Q. ठीक है. They are connected by a 24 volt battery. Okay. So let me say that this is a battery. Connected by 24 volt battery. E is equal to 24 volt. Having an internal resistance of, तो इसका internal resistance ये R is equal to कितना 0.5 ohm. What is the current flowing through the battery? इस टोटल का रेजिस्टेंस कितना दिया है 40 ओम. करेक्ट ना. तो यहां का रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 3/4 ऑफ 40 क्योंकि दिस लेंथ इज 3/4 एंड दिस लेंथ इज 1/4. यस और नो. समझ में आ रहा है. और इसका रेजिस्टेंस जो होगा R2 इज इक्वल टू 40/4 क्योंकि बराबर है ना. सो द थिंग्स आर गोइंग टू लुक लाइक कि भाई यहां पर ये वाला बैटरी है फाइन, बट इन दिस केस दिस बैटरी इज कनेक्टेड टू ये वाला रेजिस्टेंस विच इज R2 एंड दिस रेजिस्टेंस विच इज R1. यस और नो. R1 का रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 30 ओम है ना. दिस इज 30 ओम एंड दिस इज 10 ओम. R2 इज इक्वल टू 10 ओम और यहाँ पर है EMF 24 वोल्ट एंड दिस स्मॉल r 0.5 ओम. इज दिस ओके. अब इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन का इन दोनों का पैरेलल क्या बन जाएगा 1/r पैरेलल is equal to 1/30 plus 1/10. 3 3 that will be 3 plus 1 4/30. So what is R parallel? It is 30/4 that is equal to 15/2 that is equal to 7.5 ohm. Yes or no? ये 7.5 ohm is in series with this 0.5 ohm. Yes or no? So what will be the total resistance? It will be R parallel plus small r that is equal to 7.5 plus 0.5 is 8 ohm. Isn't it? So अगर सर्किट को देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का होगा. ये है टोटल रेजिस्टेंस विच इज 8 ओम एंड दिस इज 24 वोल्ट. ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V E अपॉन R. बराबर है क्या. तो EMF इज 24 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस इज 8. So this will be 3 amps is the current flowing through the battery. So the answer is D. Is this clear to you all? इसमें हमने 12th का कुछ भी नहीं सिर्फ सीरीज पैरेलल किया है. दिस इज ओनली सीरीज पैरेलल. देयर इज नो piston. Any doubts about that? Is that clear? Next question I'll go for.
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गोल्ड बैंगल। अच्छा है, थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट करके दिया है। अब सोने वाला सवाल है, थोड़ा महंगा वाला है ये। ओके, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गोल्ड बैंगल, two diametrically opposite points of the bangle are connected to the two terminals of the left gap of the meter bridge. मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में इन्होंने ऐसा किया है, मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में दे हैव कनेक्टेड दिस। सो सॉरी, या इंस्टेड ऑफ एक्स, लेकिन वहां पे वो डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर है। तो आर यू गोइंग टू डील विद दैट? देखो यहाँ पे ऐसा है, लेकिन ऐसा मतलब कैसा? इट इज नॉट लाइक दिस ना। दे से द बैंगल इज कनेक्टेड, वहां पे बैंगल अगर कनेक्ट किया है तो आई वुड से इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कनेक्ट किया उसको, बराबर है ना। सो इट इज लाइक दिस। अब यहां पर ऊपर का रेजिस्टेंस नीचे का रेजिस्टेंस मतलब वो कैसे आने वाला है? इट्स गोइंग टू बी रेजिस्टेंस ऑफ द अपर हाफ एंड रेजिस्टेंस ऑफ द लोअर हाफ, दे आर इन पैरेलल, बराबर है क्या? इजंट इट? तो यहां पर हम बोलते हैं कि भाई यहाँ का रेजिस्टेंस x है और यहाँ का रेजिस्टेंस x है, अपर हाफ का x और लोअर हाफ का x। समझ में आ गई बात? तो टोटल रेजिस्टेंस उन्होंने पूछा है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी। अब देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इज इंट्रोड्यूस इन द राइट गैप, r इज इक्वल टू 4 ओम, राइट गैप में r इज इक्वल टू 4 ओम इज इंट्रोड्यूस। द व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बैंगल? अच्छा, नल पॉइंट कहाँ पर है? To find the resistance, okay, what is the resistance of the bangle if the null point is 20 centimeter from the left end? So Lx is equal to 20, तो Lr is equal to 80। अच्छा, अब ये x और x है, इसका कितना आएगा पैरेलल पैरेलल में? what is the effective resistance of this? 1 upon x plus 1 upon x is equal to 1 upon r1, मतलब 2 upon x, बराबर है क्या? so it will be r1 is equal to x by 2, yes or no? Are you understanding that? R1 is equal to x by 2। अब यहां पर होगा R1 upon R is equal to Lx upon Lr। Now R1 is x by 2 and R is 4 ohm. Okay, this is 20 upon 80, so this is 2 4s and 4 4 cancel, that means x by 2 is equal to 1। समझ में आ रहा है? मतलब x is equal to 2 ओम, लेकिन 2 ओम किसका रेजिस्टेंस है? अच्छा, मैंने चारों ऑप्शंस लिए नहीं, वहां पे चारों ऑप्शंस मैंने लिए नहीं। 2 ओम इज इक्वल टू x ना, x इज इक्वल टू 2 ओम, बराबर है क्या? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बैंगल इफ नल पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड एट दिस पॉइंट? नाउ दीज आर द 4 ऑप्शंस। आप मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द बैंगल? यस, सो व्हाट विल बी द आंसर हियर? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द बैंगल अब डायमेट्रिकली अपोजिट के हिसाब से देखा जाए तो रेजिस्टेंस ऑफ द बैंगल विल बी 1 ओम, लेकिन 1 ओम इसके आंसर नहीं दिया है, इजंट इट? लेकिन लेंथ वाइज अगर हम देखिए कि भाई अगर ये बैंगल है तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस इज 2 और इस पार्ट का अगर यहाँ पर कट किया जाए बैंगल और उसको स्ट्रेटन किया जाए तो 2 + 2 4 ओम उसका रेजिस्टेंस, तो 2x इज इक्वल टू 4 ओम उसका रेजिस्टेंस आएगा एंड दैट आंसर वुड बी बी 4 ohm। Is this okay? Isn't it? Any doubts about that? समझ में आ गया? So I think these are the MCQs which I wanted to discuss with you all. बाकी easy है, तो I'll stop here for this thing. I'll stop here. Okay?